Hello students, today we will start the first chapter of macroeconomics, that is national income accounting. But before that we will go for the meaning of macroeconomics. The macroeconomics word, in which the word macro is derived from the Greek language, which means large, big. So here it is the economics which related with the aggregates. It is related with the study of aggregate demand, aggregate supply, total consumption, total expenditure, total national income. It is related to the general price level, means inflation, deflation. It is related to the theory of employment, unemployment. It means on an average the macroeconomics is the study of whole economy. पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. सो इट इज अबाउट द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी. Structure of an economy explains the various sectors available in the economy, how they are interrelated, how they are interdependent. In economy, there are the various sectors performing various types of the economic activities. They perform the activities of production, consumption, investment, distribution. These are the various economic activities performed by the various sectors, and how these sectors are interdependent, interrelated. Let's see. For example, production sector means business firms are engaged in the production activities. Household sectors are engaged in the consumption. They do the expenditure, they purchase the goods what produced by the production sector. थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. दे चार्ज द टैक्स, दे गिव सब्सिडी, दे चार्ज द टैक्स एंड डू द पब्लिक एक्सपेंडिचर. फोर्थ आता है फॉरेन सेक्टर. इट मीन्स if we are having the surplus of the goods and services, we will export to the rest of the world. We generate the income from that. If we are not having the goods and services produced in our economy, we will import from the rest of the world. It is what the export and import. It is what the foreign sector. Fifth आता है financial sector. It is related to the saving and investment. If we are having the surplus of the income, we will keep that income into the bank in the form of the savings, and then after, bank will give this saving to the businessman in the form of loan, and businessman will take the loan in the form of investment. They do the investment. So these are the various uh, sectors which are interdependent. प्रोडक्शन सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है. हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा देता है प्रोडक्शन सेक्टर को, वहां पर उसको इनकम होती है. गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स चार्ज करता है और उसी टैक्स को फिर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है. फॉरेन सेक्टर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं, उसी से फिर हम इंपोर्ट भी कर पाते हैं. फाइनेंशियल सेक्टर में हम सेविंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं. ऑल दिस सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So these are the various sectors. Now the stock and the flow concept. The new topic is the stock and the flow concept. Those economic variables whose magnitude is measured at a particular point of time. जब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे देश में टोटल कैपिटल गुड्स कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इट इज व्हाट द स्टॉक कॉन्सेप्ट. और पूरे साल भर में आपने कितना जीडीपी जनरेट किया, इट इज व्हाट द फ्लो कॉन्सेप्ट. इट मींस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो ये कहलाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट. लेकिन पूरे साल भर में हमने कितना जीडीपी जनरेट किया, पूरे साल भर में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, ये कहलाता है फ्लो कॉन्सेप्ट. द फ्लो कॉन्सेप्ट का मीनिंग है इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट फ्लो कॉन्सेप्ट. इंटररिलेशनशिप्स एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टॉक एंड द फ्लो. स्टूडेंट्स, स्टॉक फ्लो को अफेक्ट करता है, फ्लो स्टॉक को अफेक्ट करता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, स्टॉक फ्लो को कैसे अफेक्ट करता है? इफ वी आर यूजिंग मोर ऑफ द कैपिटल गुड्स, मींस स्टॉक का हम यूज करते हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मींस यहाँ पर हमने इनकम जनरेट करी है, मतलब ज्यादा स्टॉक से हमने ज्यादा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं. तो ये तो था, ज्यादा कैपिटल गुड्स से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग. दूसरा है, अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, वी विल जनरेट द मोर इनकम. इनकम का कुछ पार्ट हम कंजम्पशन में खर्च करते हैं और कुछ पार्ट हम कैपिटल गुड्स को परचेज करने में खर्च करते हैं. तो बाय द मोर इनकम वी मे अगेन रीपरचेज द मोर ऑफ द कैपिटल गुड्स. तो हमने फ्लो से फिर स्टॉक को भी अफेक्ट किया. सो ये स्टॉक और फ्लो को अफेक्ट करता है, फ्लो स्टॉक को अफेक्ट करता है, ये चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर.
नेक्स्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड रोटेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, उसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी इनकम सर्कुलेट होती रहती है। देयर इज द नॉन स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ इनकम इनटू द इकोनॉमी। Students, there are the two types of flow of income into the economy, the real flow of income and the monetary flow of the income. रियल फ्लो की जब बात आती है तब वहां मनी नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। रियल फ्लो मीन्स विदाउट मॉनेटरी फ्लो, मनी है ही नहीं, दैट इज व्हाट द रियल फ्लो। हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव द इकोनॉमिक कंडीशन विदाउट मॉनेटरी फ्लो? लेट्स सी। इफ द हाउस होल्ड वर्क इनटू द बिजनेस, what the business will pay to them against their work done? Definitely business will pay the goods and services. हाउसहोल्ड ने किसी फैक्ट्री में काम किया, फैक्ट्री ने उसके बदले उसको गुड्स दे दिया, मतलब पैसा नहीं दिया, गुड्स दे दिया, और हाउसहोल्ड ने भी अपनी सर्विसेज दी। तो इस तरीके से इट इज द फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर सर्विसेज। देयर इज नो रोल ऑफ द मॉनेटरी इनकम सर्कुलेशन। यहाँ पर कोई मॉनेटरी इनकम सर्कुलेट नहीं हो रही है, यहाँ पर रियल इनकम सर्कुलेट हो रही है। दूसरा आता है मॉनेटरी फ्लो ऑफ द इनकम। इन द मॉनेटरी फ्लो ऑफ द इनकम, हाउसहोल्ड इज प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द बिजनेस इज पेइंग देम द मॉनेटरी इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीजें बिजनेस उसको पे कर रहा है। दूसरा, business is offering them goods and services, household is purchasing the goods and services by paying the price. It is what again a monetary flow of the income. So there are the two types of the flow of income, the real flow of income and the monetary flow of income. Now students, we are moving towards the assumption part of two sector model economy. In the two sector model economy, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, there is two sector, first is household and second is the firm. दूसरा है देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इट मीन्स यहाँ पर कोई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई हाउस होल्ड यहाँ पर सेव नहीं कर रहा है, हमें मानकर चलना है, और कोई बिजनेसमैन को बैंक से कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। इट मीन्स बिजनेसमैन जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है उससे जो पैसा आ रहा है उसी को वो री इन्वेस्ट कर रहा है, और हाउस होल्ड यहाँ पर जितना भी पैसा फैक्टर इनकम के रूप में जनरेट कर रहा है उसको पूरा 100% खर्च कर रहा है, कुछ नहीं बचा रहा है। हाउस होल्ड इज नॉट सेविंग देयर पार्ट ऑफ इनकम। सेकंड आता है यहाँ पर, थर्ड आता है देयर इज नो गवर्नमेंट, सो देयर इज नो टैक्स और नो पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं, ना तो हाउस होल्ड से चार्ज कर रहे हैं, ना बिजनेसमैन से चार्ज कर रहे हैं, और साथ में वो कोई इन्वेस्टमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोशल वेलफेयर के लिए भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। फोर्थ आता है देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, सो नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। यहाँ पर कोई बिजनेसमैन बाहर की ओर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई हाउस होल्ड बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा है। सो देयर इज ओनली टू सेक्टर, मीन्स बिजनेसमैन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हाउस होल्ड ही परचेस कर रहा है, और हाउस होल्ड यहाँ पर सिर्फ बिजनेसमैन से ही परचेस कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा है। सो दीज आर द जनरल फोर अजम्पशन, और इसके बेसिस पर हम टू सेक्टर मॉडल के अंदर कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन है कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही कंजम्पशन हुआ है। टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। अगर हमने 100 रुपए की चीज प्रोड्यूस करी है तो यहाँ 100 रुपए की चीज ही कंज्यूम भी की गई होगी। दूसरा है जितना हमने फैक्टर इनकम जनरेट किया, मतलब कि जितना हाउस होल्ड ने वेजेस कमाया है, रेंट कमाया, इंटरेस्ट कमाया है, उतना ही उन्होंने फैक्टर पेमेंट का फॉर्म भी है, मतलब बिजनेसमैन ने जितना वेजेस दिया है उतना ही हाउस होल्ड को वेजेस मिला है। बिजनेसमैन ने जितने लोगों को फैक्टर पेमेंट दिया है उतना ही हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम रिसीव हुई, उन्होंने और कहीं से भी इनकम जनरेट नहीं करी है। थर्ड आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। जितना उनको फैक्टर इनकम मिला है उतना ही उन्होंने 100% कंजम्पशन पे खर्च किया है। फोर्थ आता है रियल फ्लो इक्वल्स टू द मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो जितना हुआ है उतना ही मॉनेटरी फ्लो है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड द मॉनेटरी फ्लो। द नेक्स्ट टॉपिक इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। Actually, when the some part of income get out of the circular flow of income, that is what leakages. It may be in the form of the savings done by the households, tax paid by the household or the business firms to the government, or the payment made for the import of the goods from the rest of the world. In that manner, these economic variables are called leakages.
जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था उसमें से कुछ पैसा यदि बाहर निकल जाता है उसे हम लीकेजेस बोलते हैं। वो सेविंग्स के फॉर्म में हो सकता है, अगर हाउस होल्ड सेविंग्स कर लेता है, खर्च नहीं करता है। अगर वो खर्च नहीं करेगा तो बिजनेसमैन के पास इनकम नहीं होगी, और बिजनेसमैन के पास इनकम नहीं होगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाएगी। सो लीकेजेस आर हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। Just opposite, there are some injections into the economy in the form of investment. जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं अगर वो सेविंग्स करते हैं उसमें से एक और बिजनेसमैन तैयार होता है, हाउस होल्ड में से ही एक एंटरप्रेन्योर तैयार होता है। इट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का इंजेक्शन है जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट होता है, पावर आता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। दूसरा, इफ वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर जनरेटिंग द मोर इनकम। उस ज्यादा इनकम को हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर ज्यादा परचेसिंग पावर होती है। इट इज व्हाट अगेन इंजेक्शन। When the government charging the tax and doing the public expenditure, it is what also the injection. So injections are the economic flow which increase the production possibilities of economy, which increase the income generation power of the economy. The next topic is domestic income and the national income. The income generated in the domestic territory, it is what the domestic income, and the income generated in the economic territory, that is what national income. First of all, we will discuss what is the domestic income, how it is related with the domestic territory. So first of all, we will understand the meaning of domestic territory. Domestic territory, it is the geographical territory administered by the government within which the person, goods and capital can be freely circulate. जिसमें कोई भी पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी किया जा सकता है, कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है। सो द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स फर्स्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर एंड द एयर स्पेस। स्टूडेंट्स, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसी के ऊपर जितना एयर स्पेस है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सेकंड पर आता है एम्बेसीज, मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड, जो हमारे देश की अगर मिलिट्री कहीं पर बाहर पर लोकेटेड है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज पेइंग द सैलरी टू देम, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश में यदि किसी बाहर देश की कोई सेना यहाँ पर है, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। थर्ड आता है शिप्स, जितने भी जहाज हैं, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स operated by the resident between the two or more countries will be considered as the domestic territory of our country. So these are the three scopes of the domestic territories. So while calculating gross domestic product or while calculating the domestic income, we will estimate all the production activities performed in the domestic territory will be included, and those activities which are not performed in our domestic territory will not be the part of our GDP. So with example we will study what will be included into the domestic income and what will not be the part of our domestic income. So with the help of example we will understand what items will be included into the domestic income. So first example, the profit earned by foreign company in India. It will be the part of domestic income. Actually, it is increasing the domestic production, the GDP of our country. How? The reason is that in the domestic territory definition, we have included political boundaries first, second embassies, third aircraft and transportation vehicles which are moving between one or two countries, military base, एम्बेसीज, ये सब कुछ हमने लिया है। लेकिन कोई बिजनेस यूनिट है, बाहर की कोई कंपनी है डूइंग द बिजनेस इन अवर कंट्री, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अवर कंट्री, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ जीडीपी। बट जस्ट अपोजिट, इंडियन कंपनी बाहर में जाकर बिजनेस कर रही है तो इट विल बी इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ अवर कंट्री। सेकेंड एग्जाम्पल है salaries to the resident of England working in the Indian embassy in England. अगर हम किसी इंग्लैंड में रहने वाले पर्सन को सैलरी दे रहे हैं बिकॉज ही इज वर्किंग इन अवर एम्बेसी,
लोकेटेड इन इंग्लैंड, हमारी एम्बेसी के अंदर कोई इंग्लैंड का पर्सन वर्क कर रहा है और हम उसको सैलरी दे रहे हैं, it will be the part of our domestic territory because embassies are direct part of the domestic territory. और just opposite, इंग्लैंड की एम्बेसी में कोई इंडियन यहाँ पर काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी दे रहा है वो इंग्लैंड दे रहा है, तो इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. थर्ड है प्रॉफिट अर्न बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया. रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में ही लोकेटेड है, इंडिया में ही बिजनेस कर रही है, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. The next example, rent received by the Indian resident for their building rented out to the foreigners in India. इंडिया में ही कोई पर्सन कोई बिल्डिंग को रेंट पर देता है किसी फॉरेनर को और रेंट जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज द जीडीपी, इट विल बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. लेकिन इसी के अपोजिट में अगर हम देखें, रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियंस फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन द सिंगापुर, तो किसी पर्सन, हमारा देश का कोई पर्सन है, उसकी कोई बिल्डिंग सिंगापुर में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और वहीं पर उसने रेंट दिया, इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज हमने फिर से मैं बताता हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है ये. डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होता है, एम्बेसीज होता है, मिलिट्री बेस होता है, ये सारी चीजें होती है. यहाँ पर इस पर्सन की जो बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, वहां पर इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. So students, we came to know the concept of the GDP, gross domestic product. और gross domestic product का मतलब है कि value of all final goods and services produced in an economy during the 1 year. यहाँ पर चाहे कंपनी कहीं की भी हो, अगर वो हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है, इट मीन्स वो कंपनी हमारे देश की जीडीपी बढ़ा रही है. अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की. एक्चुअली जीडीपी डज नॉट गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द नेशनल इनकम. जैसा कि आपने देखा कि अमेरिकन कंपनीज डूइंग द बिजनेस इन अवर कंट्री, जनरेटिंग द प्रॉफिट, बट एक्चुअली इट इज द प्रॉफिट ऑफ द अमेरिकन कंपनी. दे कैन टेक दिस प्रॉफिट टू देयर कंट्री, सो unnecessarily we are adding to the GDP, but it is not our income, it is not our national income. For the calculating national income, we will add factor income from abroad. अगर हमारे देश की कंपनी अमेरिका में काम कर रही है तो हम उसे ऐड करेंगे जीडीपी में. तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी विल ऐड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी विल ऐड, और हमारे देश में जो बाहर की कंपनी है, अमेरिकन कंपनीज हैं, वो वर्क कर रही है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम डिडक्ट करेंगे. तो हाउ वी कंसिडर दैट दिस फैक्टर बिलोंग्स टू विच कंट्री? It is decided by the normal resident of a country. So what is the resident of a country? Resident of a country includes persons, business units, government and their agencies whose center of the economic interest lies in the economic territory of that country. Like अगर रिलायंस का कोई बिजनेस यूनिट अमेरिका में है, तो रिलायंस अगर अमेरिका में बिजनेस कर रही है तो इट विल इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ अमेरिका. But when we talk about the national income of India, it will be the part of national income of our country. It is called net factor income from abroad. और ठीक ऐसे ही अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना कोई बिजनेस यूनिट इंडिया में सिचुएटेड है, इट विल इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इंडिया, बट अल्टीमेटली इट इज इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका. While calculating the national income, we will deduct the factor income to abroad and we will add factor income from abroad. That is what net factor income from abroad. Students, one more thing, you don't get confused between the citizen and the resident. Actually, the citizen is the different concept. Citizenship is the legal concept based on the place of birth or some legal provisions allowing a person to become a citizen. Citizen का मतलब जैसे कि the person having the voting rights, it is called the citizenship. So there is the difference between the resident and the citizen. Resident or residential concept is being used to identify the factor income.